program CAP. Today's session, Making Career in Indian Judiciary and as JAS in Defence Services, is designed to guide our final year law students through the transition from academia to professional excellence. A warm welcome to the bright minds of 6th, 8th and 10th semester of BLLB and BBLLB. This session is for you, those who are ready to step into the world of litigation, corporate law and judiciary. Before we begin, let me brief Gita is an international business school before you. Gita is an international business school located in Rohini, Delhi, is a prominent institution established in 2004. It has built a strong reputation for its professional program and is affiliated with Guru Gobind Singh University. The institute is accredited with an A grade by National Assessment and Accreditation Council. It is recognized by the Bar Council of India for its legal programs and the All Indian Council for Technical Education for its management courses. It's consistently ranked as a Category A institution by the Joint Assessment Committee of the Government of Delhi and TJSI. GIBS offer a variety of undergraduate and postgraduate courses focusing on two primary domains. Management includes MBA, BBA, International Business and BBA. Law offers integrated 5-year programs such as BLLB and BALLB, which are designed to combine legal education with social sciences or business management. We are honored to have with us our esteemed mentors, Dr. Professor Afzal Wani Sir, Nidhi Ma'am, Neelam Ma'am, Shweta Ma'am, Mansi Ma'am, Monica Ma'am and Prachi Ma'am. Thank you for your constant guidance in organizing such impactful sessions. It is now my distinct honor to introduce our resource person, Dr. Raj Narayan Singh. Dr. Singh carries a truly inspiring profile. He served the nation as a pharmacist in the Indian Navy for 1947-75 to 1990. He later transitioned into the judiciary, serving as an additional district and session judge in Uttar Pradesh. His vast experience includes adjudicating serious criminal cases and serving the chairman of District Consumer Commission in Kanpur. Sir, we eagerly look forward to your insight on the higher judicial service and the JAG entry. Now, I request Dr. Afzal Wani Sir to present a sapling to Dr. Singh as a token of our appreciation. ओए पांडे So dear students, that was a sapling, but I feel that our today's resource person is quite special and special. He's a person, he was right from his childhood in the Indian Defence Forces. He just saw a little bit of childhood and then he was in the service of the nation. I think there are people rarely so. And then while serving the country, he acquired all knowledge during that service period. He did not serve only on the land, he served in waters. Today's India's one of the most challenging problem is that to what extent this
country is able to manage the waters of India. How much Indian notion is under the control of India is a big challenge. Unfortunately, we don't have now true students of law. A student of law does not mean that he has learned the definition of consideration given in section 2D of the Indian Contract Act, which was drafted in 1872. No. A true student of law is one who understands all the factors which govern the country, who understand law as an instrument of development, change, security, progression and all that. So, I have been told that we have got a very good batch of first year students of law this year. Can I see who are the first year students this year present in this hall? Lot of good things have been talked about you. I said if I have 60 of them, I can make the nation feel that Geeta Ratan student of law, batch 26, is distinct from all others. They can read the law, they can study the law, they can understand the law, but they can go much beyond the law. So with this, I thought, let me look for a person whom you can see that how he managed his studies while being in service, not only on the land but in waters. How he was managing to study and then getting a degree from Mumbai University is not a joke. And then cracking the administrative services of the largest province of India, the Uttar Pradesh, and enjoying as an administrator, and then saying, if my grandchildren will know of it, that he served the defense forces, he served the administrative services. Let me have more colors. How did he crack UP judiciary exam while doing all these things? What is the mystery? I respect Bal Gangadhar Tilak a lot. I think he is the Bal Gangadhar Tilak of modern India. Give him a thunderous applause. The person who told Mr. Mohandas Karamchand, go and study law. Mr. Nehru, go and study law. Mr. Kania, go and study law and guide the nation. So, a mysterious person, hidden in certain areas of western Uttar Pradesh, then he may not have talked to the law students for a long time. So, we say that he is a hidden treasure. But now we will explore him. We will ask him 100 questions. कि पढ़ा कैसे? नेवी में किया क्या आपने? ये बताइए. अब तो लॉ स्टूडेंट हैं, but we are interested in nation. We are interested in building the nation. हमें ना सिर्फ 30,000 ही और सुप्रीम कोर्ट में जाके पैसे नहीं कमाने हैं, लॉ क्लर्क नहीं बनना है. हमें देखना है कि क्या क्या किया जा सकता है. और
डिफेंस फोर्सेस में भी तो झगड़े होते होंगे, उनको कौन सॉल्व करता है? वहां क्या सिस्टम है? हमारे लिए तो यही है ना, यही अपॉर्चुनिटी है। और मेरे होने में यही फायदा है कि मेरी तरफ से स्टूडेंट को एक आजादी है कि आप टीचर से इतने क्वेश्चन पूछो, इतने क्वेश्चन पूछो, इतने क्वेश्चन पूछो कि वो घुटनों पे आ जाएगा और आपसे कोई नहीं पूछेगा। और फिर अगर किसी ने कुछ कहा भी तो मैं हूं आपके साथ। इतने और लर्न कीजिए, बताइए आप तो अच्छे टीचर हैं, लेकिन मुझे ये तो बता दो, आज नहीं है पता तो कल तैयारी करके आ जाओ। मैं तो बहुत सीरियस लॉ स्टूडेंट हूं, ऐसा नहीं है कि दिन निकल गया और कोई बात नहीं है, नहीं, मेरी जिंदगी का ये एक कीमती साल है, कीमती दिन है, कीमती एक आवर है, मैं इसको जाया नहीं होने देना चाहता। तो इसलिए खासकर मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ के स्टूडेंट कल्चर को बदलना चाहते हैं और यहाँ से न सिर्फ ग्रेड ए और मार्क्स लेके आए, लेकिन एक कॉम्पिटेंट लॉ स्टूडेंट बन के सामने आ जाए। और फिफ्थ ईयर में आते ही आप सबके पास ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरा अपना लॉ ऑफिस हो, या एटलीस्ट मैं किसी का लीगल एडवाइजर हूं, मैं किसी कॉर्पोरेट हाउस से जुड़ा हुआ, मैं किसी सीनियर एडवोकेट के ऑफिस में एक रेस्पेक्टेबल मेंबर की तरह हूं। ऐसा ना हो कि वो कहेगा ये फाइल वहां कोर्ट पे पहुंचा दो, ऐसा हो कि आप ब्रीफ करेंगे हमें जज को ये कहना है, मैं क्लाइंट का इंटरव्यू कर सकता हूं, ऐसा लॉ स्टूडेंट। तो मेरे दोस्तों, यू आर वेरी वेरी डियर टू मी। मुझे इस धरती पे लॉ स्टूडेंट से ज्यादा कोई प्यारा नहीं। अगर कुछ बदलाव लाना है तो लॉ स्टूडेंट ही लाएगा। बाकी का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा गधा ही समझता हूँ। मैंने कुछ कहा नहीं ना, आपने सुना भी नहीं कुछ, क्योंकि ये लॉ वाला इसमें सोचने का, ही डिपेंड्स ऑन थॉट, इसका तो थॉट ही होता है ना। He does not know कि जज मुझसे क्या पूछेगा, but still he is ready with an answer. He does not know कि अपोजिट लॉयर क्या कहेगा, still he is ready with an answer. उसको मालूम नहीं है कि क्लाइंट क्या कहेगा, still he is ready with an answer. बताओ, इससे अच्छा अलर्ट माइंड कोई हो सकता है? तो इसलिए लॉ स्टूडेंट और जो भगवान होते हैं, मैंने उनसे कई बार बात की, तो उन्होंने कहा हमें सबसे ज्यादा आप ही के स्टूडेंट प्यारे हैं और अच्छे लगते हैं और वही अच्छा करते हैं, न्याय और सारी चीजें वो अच्छा करते हैं। तो चलो, आज के दिन बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आज के दिन जो भी आए हैं, इनकी ना मतलब ऐसे पहले सुनेंगे इन्हें क्या बोलते हैं, फिर इनको ऐसे बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे कि इनमें वापस जाने की ना ताकत ही ना हो। फर्स्ट फ्लोर पे ना हाथ पकड़ के उनको ले जाएंगे, फिर गाड़ी में बिठा देंगे और ये याद करेगा कि गीता रत्न के स्टूडेंट्स को लेक्चर देना कोई आसान बात नहीं होती है। आईपी यूनिवर्सिटी में मुझे राम जेठमलानी जी ने फोन किया, अगर सुना होगा, एक राम जेठमलानी टॉपमोस्ट लॉयर थे। उन्होंने कहा लंदन से, इंग्लैंड से एक ह्यूमन राइट्स कैंपेनर आया है, तो वो आपके यहाँ लेक्चर दे दे। मैंने कहा ठीक है। तो उसने हमारे यहाँ आईपी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे दिया। तब वो यूनिवर्सिटी कश्मीरी बैठे थे, तो मैंने कहा ठीक है, वेलकम। वो लेक्चर दे दिया उन्होंने, और मेरे स्टूडेंट ने उनको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि वो बेचारा सोच रहा था मैं कहाँ फंस गया।
मैं तो इंग्लैंड वालों को कुछ कह रहा हूँ, इनको कुछ कह रहा हूँ, ये आईटी वाले क्या, ये क्या चीज़ है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आदमी को फिर सोचना पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए मुझे आई वॉन्ट दैट ब्रांड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गीता रतन, लॉ स्टूडेंट्स ऑफ गीता। तो अब हम अपने जज RN सिंह जी को जो है निवेदन करते हैं कि और आप आ जाइए और यहाँ पे फंस जाइए और बोलिए। My highly respected Dr. Afzalwani, my three friends have come from Supreme Court. They are practicing lawyers. Shri Birpal Singh, CP Singh and Adnan Khan. My dearest students, faculty members, I am very much overwhelmed being among you all. Today I am feeling as if I am also a student, and as Dr. had earlier said, it is really very nice to be among you all, and I am very, very much thankful to Dr. who has called me today here. I will, whatever knowledge I have brought with me, I will impart with you, and later on you can ask the questions. Legal subject I will not take up, because already we are getting lectures on law, like what is the definition of law. Many authors have given different legal definitions. Take example of Arthur, Karl Marx, Bolton. Many authors they have given definition, and you are already good after reading everyday lectures on law. Why it is so? It is so that it is very much like the students. Now I will come directly on the topic. Topic is today's given to me. Making career in Indian judiciary, and the second is making career in Judge Advocate General branch of Indian Defence Forces. So, now for Indian judiciary, as you know that LLB degree is must for all, and then preliminary examination is there, main examination is there, and third is interview. These three stages are there for guiding Indian judiciary in subordinate court. What is subordinate court? Subordinate court is called, district courts are called subordinate courts. There you can go from civil judge to district judgment. And even if you have come in early age, you can go up to the high court also. And experience for lower judiciary, joining lower judiciary is, any fresher also can appear for the examination, and any law graduate can apply. But for higher judiciary, that is directly you are appointed as an additional district judge. For that you have to have 7 years experience, and then comes language. Language you have to master in your state language, local language. That is necessary. Prelims stages, when you join as a civil judge junior division, the next promotion will be civil judge senior division. And the criminal side, if you are posted, you are ranked with the additional chief judicial magistrate, and then chief judicial magistrate. Similarly, on civil side also, from junior division to senior division. And senior division thereafter, then you come to the third judicial service, that is additional district and session.
additional district and session judge is having same powers under the Constitution of India as district judge. Only district judge is given certain special powers of writing annual character certificates of all the judges. That is the special power is given to district judge. And similarly, the power of trying and dispersing officer is also given to the district judge. However, generally district judges, they don't perform this duty of district trying and dispersing officer. They delegate this power to some additional district judge. Then you would like to know that how to prepare so that you must get through an Indian judiciary. And you have to master Constitution also. From the Constitution you are asked many important questions. So these four type of subjects you have to master. And legal practice can help working of court proceedings. If you have got legal practice, it is very good. And some students, they join some senior advocates in the early stage also, when you are doing second law or third law. Then also you can join some senior advocate and learn the proceedings of the court. That's how even the simple things, application, adjournment application. Some students come from certain colleges, they don't know how to write even adjournment application. So while working with a senior advocate, you can learn many things which you don't expect, which are not taught in your classes, in your Now comes to the any other question you asked me after my lecture is over. Now come to the Judge Advocate General Branch. Judge Advocate General Branch is in all the three forces, but however, it is a large in Indian Army, and sporadic vacancies are there in the Indian Navy. So entry, how to take entry in Judge Advocate General Department, that I would like to tell you. That is through Short Service Commission, and twice a year vacancies are notified in the newspaper or employment paper. And eligibility, citizenship of India, one must be citizen of India, and but you should be unmarried. That is one important clause is there. One should be unmarried. Age limit is 21 to 27 years, and education 50% marks in LLB. LLB degree is enough. For joining Judge Advocate General Branch, LLB is enough. However, if you are LLM, then when the candidates are being segregated, shortlisted, that gives importance to the student who has LLM degree also. And that individual must be eligible for registration as an advocate with the Bar Council of any state or Bar Council of India. Selection process in Judge Advocate General Branch is through direct entry. No written exam is conducted. For joining Judge Advocate General Branch of Indian Defence Forces, you are not required to appear for any examination. No written examination, only interview is there. And if you qualify interview, then medical test is done. But interview is very tough. It's not for 1 hour or 2 hours. 5 days. It takes 5 days in Service Selection Board. 5 days interview is there. Medical is also very necessary, very strong, because in Defence Force, the medical test is very essential. Shortlisting, how shortlisting is being done for Judge Advocate Branch of Indian Defence Forces, that is based on, like student has come from CLAT or PG, what his course he has got, and what was the percentage in LLB, and then finally merit list is prepared. Now I would like to tell you the process of training and commission.
that is through SSC, Start Service Commission, Officers Training Institute, Madras is there, Bhopal is there, Bangalore is there. In that institute, training is being conducted for the persons who join Judge Advocate General Branch of Indian Defence Forces, and that training is for 49 weeks, very strong training. You are given many tasks, you are trained for many things, because comparatively other services, service of defence force is little tougher, it's not easy. You are not just to go and sit in the AC and work on mobile or on this laptop. That is hard work. And you people know how to apply for Judge Advocate General Branch? Anybody knows? There is website, and in that website you can apply. Website is there. Website you must search in internet also. Website for joining Judge Advocate General Branch of Indian Defence Forces. So if you put in that internet, it will already tell you that is www.joinindianarmy.nice.in. And then promotion chances. As a captain, immediately as soon as you are selected for Judge Advocate Branch, you are given, after the training, you are given captain rank in the army, and thereafter you are promoted to major within 6 years. Time scale promotion is there. And then comes Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel is promoted within 13 years. That is also time scale promotion. And thereafter is the Colonel. And similar ranks are there in Indian Navy also. And Air Force generally, they take law officers from the public. They don't allow like army Judge Advocate twice a year they are elected. कुछ बच्चे चाहेंगे आप हिंदी में बोलिए। I think people can understand Hindi also, English also. So, ज़्यादा इशारा है। अच्छा, so उसमें no problem. What is role of Judge Advocate General in military? That is advising on military law. If any military law question comes, then one has to advise. Conducting court martials and presenting the army in legal cases. In Indian, ये बताइए कि जब आप डिग्री में थे, आपने कैसे मैनेज किया स्टडी, ये बताइए आप। sir, you know my background. I have been a pharmacist in Indian Navy, and 3 years pharmacy course, diploma in pharmacy course I did from Harvard Post Medical College, and then टाइम कैसे निकालते थे? हम लोगों का टाइम नहीं निकलता, कुछ मोबाइल में चला जाता है। that time there was no mobile. जो है वो टीचर कुछ क्लास में बोलता रहता है, हम समझते नहीं हैं। At that time there was no mobile. आप कैसे करते हैं? No mobile, and मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ और करना है, इसमें हट के करना है। जिंदगी में कुछ ऐसा करें जो ऐसा लगे कि हाँ कुछ अलग किया है। तो वो क्यों था आपने कि मैं अलग करूँ? ये कहाँ से रहते? इतनी मेहनत कर रहे थे, किसी को कुछ करना होगा ना, ऐसे थोड़ी करता। बोलिए सारे राज। अब इसमें तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन हम भी तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना, हम भी भाई लोग देवी में हमें 3 लाख की नौकरी मिलेगी, हम भी तो कुछ करना चाहेंगे। मोबाइल टाइम आप मेरी डाल दो, ये भी नहीं है कुछ करने के लिए
किया और बल्कि मैंने फिर अपनी वाइफ को भी अपने साथ में स्टूडेंट बनाया एंड वी बोथ यूज्ड टू गो एंड अटेंड यूनिवर्सिटी क्लासेस एंड शी आल्सो डिड MA B.Ed M.Ed फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो वो वाला तो बात नहीं थी, वो कुछ करें हमारे अच्छा के लिए हम कुछ करें, बेहतर करें, और इसलिए फिर हमने वहाँ से समय निकाल करके, जैसे मान लीजिए हमारा फार्मेसी का काम होता था, हमने 2 बजे तक दवा बांट दिया, 2 बजे के बाद फ्री, तो कुछ लोग अपना दर्द पीने चले जाते थे, कुछ अपना पिक्चर चले जाते थे और हम नहीं जाते थे, हम पढ़ाई करते थे, हमारी आवाज पीछे तक आ रही है। तो मैंने बताया कि जो हमें टाइम मिलता था डिफेंस में, ज़्यादातर लोग जो टाइम पाते हैं तो लीजर चाहते हैं, तो लीजर के लिए वो जाते थे, कोई दारू में जा रहा है, कोई सिनेमा हॉल में जा रहा है, तो इससे अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन हमने संकल्प लिया था कि हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम अपना वो टाइम पढ़ाई में लगाते थे। इवनिंग क्लास होता था यूनिवर्सिटी में, तो इवनिंग क्लास में हम चले जाते थे, 6 to 8 हमारे लेक्चर होते थे और वो हमने पढ़ाई किया। LLB के बाद फिर हमारी हिम्मत हार गई थी, तो हमारे जैसे आप गुरु हैं वैसे ये गुरु जी मिल गए कर्नाटक के। ही टोल्ड मी हिज स्टोरी। हमने कहा था इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बीइंग इन नेवी, हाउ कैन आई डू LLM more studies are there, more time I have to devote. Then he told his story to me that he belonged to a very poor family of Karnataka. B.N. Amin, Professor B.N. Amin. वो मछली मारते थे, मछली मारने के परिवार से थे, तो कक्षा 10 के बाद उनके पिताजी ने पढ़ाई खत्म करा दी और खत्म करा करके ये कहा कि अब तुम हमारे साथ मछली मारो, तो मछली मारने का काम करते हैं। लेकिन एक दिन उनके मन में आया नहीं हम तो पढ़ाई करें, ये मछली मारने का धंधा तो कई वर्षों से चला रहा, हमारे कई वर्षों चला रहा है। तो उन्होंने फिर अपने पिताजी से कहा कि हमें पढ़ाई करना। पिताजी ने 2 थप्पड़ मारे और ये कहा कि अरे जो हमारा आय का साधन है मछली मारना, वो तो खत्म हो जाएगा। तो उसी रात को भाग गए, वहाँ से भाग गए, बॉम्बे आ गए। और बॉम्बे में स्ट्रीट लाइट के नीचे उस समय यूपी और बिहार के लोग जो बेचते थे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। तो वो किसी आदमी के पास पहुँचे और अपनी स्टोरी बताई, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो अच्छा लड़का है, तो उसको अपने पास कर लिया उन्होंने, हमारे प्रोफेसर को, और उनको अपने साथ रखा, अपने खिलाते पिलाते थे, तो उनको ड्यूटी लगा दिया, इतने टाइम से इतने टाइम तो जिनको फ्री रहते हो तो ये बेचना है। तो वहाँ से आय होती है। उस व्यक्ति ने फिर उनको BA करा दिया। BA के बाद फिर उन्होंने लॉ ज्वाइन किया, लॉ करके फिर किसी के सीनियर के अंदर में प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस करके उन्होंने he became professor in Bombay University and also he was a leading lawyer also. तो उन्होंने अपनी स्टोरी हमें बताई कि जब मैं इतने संघर्ष में पढ़ाई करके यहाँ बन सकता हूँ तो आप भी कुछ कर सकते हैं। I was inspired by that. और हमने कहा कि नहीं, जो हम समझते हैं ना कि नेवी में होते हुए इन्होंने LLB किया, तो एक राज बोलिए कि ये LLB का एग्जाम आपने मेहनत करके पास किया या कोई नकल वगैरह मारी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आप जरा सा भी आपने सर भी राइट लेफ्ट कर दिया तो पकड़ गए। ये यूपी में तो खुद था, लेकिन बॉम्बे यूनिवर्सिटी में और उसका इन्विजिलेटर कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। जैसे लॉ के है तो उसका कॉमर्स के कोई स्टूडेंट होंगे, उसी कॉलेज में लगा दिए जाएंगे इन्विजिलेटर, लेकिन कोई सर नहीं ला सकता। और कुर्सी वाला सिस्टम यूपी बिहार में है, वहाँ तो मैंने आपके हाथ में ही ना छोटा छोटा लिख के देखा, तो मैं सोचा कि शायद बचपन से नकल मारने की आदत है, ऐसा तो नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करता। तो ये छोटा छोटा लिख के क्या लगाए? वो तो इसने हमने नोट कर लिया था। पता नहीं आप लोग क्या पूछ रहे थे, इसकी भर्ती कैसे होती है, इसकी एज क्या होती है, तो हमने नोट कर लिया था। कभी कोई पूछ ले बात, जैसे गुरु जी ने चैलेंज कर दिया कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और अच्छा पूछो पकड़ के स्टूडेंट है ना, बड़े लाटी हैं, अच्छा स्टूडेंट सीरीज से आकर के
ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे उस समय कोचिंग सेंटर, तो मैं सोचा कि बहुत और बीइंग इन नेवी आई अपियर्ड फॉर पीसीएस मेन, पीसीएस मेन। तो मैंने क्या किया कि वो गाइड्स ले लिया, गाइड जो साथी है, तो 2-3 आर्टिस्ट की गाइड लिया और अनसॉल्व पेपर ले लिया पिछले 10 साल। फिर उसमें गैस लगाया कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। ये सुनिए कैसे विदाउट कोचिंग कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से बार बार पूछा जा रहा है, उसको घुमा फिरा के उसका हमने अलग बनाई स्ट्रेटेजी और अलग क्वेश्चन पेपर अपना बना लिया। 20-22 क्वेश्चन का बना लिया चैप्टर्स का, वो 20-22 चैप्टर्स हमने मास्टर कर लिया। तो एक ही बार में बीइंग इन नेवी आई अपियर्ड फॉर यूपी पीसीएस मेन and I was selected for 2-3 trades like ARDO and sales tax, that time it was called sales tax, now it is called GST, sales tax officer, and third was treasury officer. So I became treasury officer. I applied for treasury officer and I served for 5 years as a treasury officer. treasury officer का काम क्या होता है? So treasury officer and treasury office is exchequer of the budget of the government of particular state. जितना पैसा आएगा स्टेट का उस जिले के ट्रेजरी में आएगा और उस जिले का ट्रेजरी अफसर उसको डिस्पर्स करेगा। ये काम होता है। अरबों रुपए का या छोटा जिला है तो करोड़ रुपए का, ये काम ट्रेजरी अफसर का। और इस टाइम पे जुडिशरी में आ गए, हाँ, उसकी तैयारी कैसे? जुडिशरी में हम आए कैसे, ये स्टोरी बता देता हूँ आपको। मैं कानपुर में पोस्टेड था जो ट्रेजरी अफसर, छोटा चक्के वाले वो स्कूटर थी बजाज की, उससे मैं जा रहा था। एक सिपाही ने हमको रोक लिया एक चौराहे पे, बोला पेपर दिखाओ गाड़ी। मैंने कहा मैं तो ट्रेजरी अफसर जिले का और तुम मेरे से पेपर मांग रहे हो। तो बोला साहब वो ट्रेजरी अफसर का काम क्या होता है, हम जानते नहीं, मुझे पेपर काम जानते नहीं। वो भी बोला हम जानते नहीं क्या होता है, हम तुम्हारी तनख्वाह देते हैं और तुम जो वर्दी पहनते हो वर्दी का वहीं से बिल पास होता है, सब तो वहीं से होता है। बोला साहब वो तो अग्रवाल बाबू ले आते हैं हमारे। Then I thought to become judge, क्योंकि everybody knows who is judge. जज को गांव का जो लेबर है उससे लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जानते हैं जज कौन होता है, जज का क्या होता है। उसी दिन मैंने फिर मन में बना लिया कि अब जज बनना है। उस समय उर्दू वॉज वेरी मच कंपल्सरी इन उत्तर प्रदेश। I think let us appreciate his right ego कि मुझे जज बनना है और हम इसका ये नहीं बनना स्कूटर में कोई रोक ले और फिर पूछे कागज देता है। जज बनना है तो बस वही है, नहीं पूछेगा। तो अब उर्दू कंपल्सरी थी, 40 नंबर की आती थी, जो आपको एक ऐसे टाइप होता थी स्टोरी टाइप, उसको हिंदी में करना था या इंग्लिश में करना था। हमने कहा उर्दू किससे सीखी? तो हमारे यहाँ कानपुर में एक सैयद मियाँ रफूगत थे, उनके पास में गया। रफू का काम, रफू समझते ना, कपड़ा फट जाए उसको रफू। तो सैयद के पास हम पैंट रफू कराना जाया करते थे। तो सैयद भाई से हमने कहा सैयद भाई हमने ये सोच लिया कि हमको जज बनना है, लेकिन ये बताओ उर्दू कैसे सीखें? तो उन्होंने कहा हमारी बेटी है ना, उसे सिखा देगी। उनकी बेटी ऐसे हमारे ख्याल से BM पढ़ रही थी, MM पढ़ रही थी। उस लड़की ने हमें उर्दू सिखाया, तो हमारे 40 में 38 मार्क्स उर्दू में। और एक ही बार में बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी आई बिकेम जज। और डॉक्टर ऑफ लॉ हमको गुरु जी ने करा दिया बिना किसी परेशानी के। हम ये जानना चाहते हैं कि हम भी करना चाहते, हमारा मन ही नहीं लगता पढ़ने में, आपका कैसे लगा ये तो मसला है। देखिए मन को लगाना पड़ेगा, कैसे किया, मन को लगाना पड़ेगा। कन्फाइन कैसे किया आपने पढ़ना है वो बता, मन को लगाना पड़ेगा। मन एक ऐसा चीज है जो हमेशा हमको गिरावट की तरफ ले जाता है, जो ईजीनेस की तरफ ले जाता है। जैसे पानी है, पानी को आप डालेंगे तो ढाल की तरफ जाता है, वैसे ही हमारा मन है। मन हमको हमेशा बहुत इजी रास्ते से, जो सबसे इजी हो उधर ले जाएगा।
और खराब जगह में और जल्दी ले जाता है, खराब की तरफ हमारा सोच जल्दी ले जाता है मन। तो इसलिए मन को तो हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। एक बार अगर हमने संकल्प ले लिया, एक बार हमने कमिट कर लिया कि हमको वो काम करना है, तो फिर उस पर ही ध्यान केंद्रित करना है और उस दिशा में सोचना है। ऐसे ही लोगों के संपर्क में भी रहना है। सत्संगति कथय किम न करोति पुरुषा। तो यदि आप जैसी संगत करेंगे वैसा ही आपका माइंड बनता जाएगा, वैसा ही मन बनता जाएगा। और ये ऐसे होता है जैसे हम किसी इन्वायरमेंट में जाएं, मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन कुछ और बन जाता है, शमशान घाट में जाते हैं तो मन हमारा कुछ और हो जाता है, डांस पार्टी में जाएंगे तो हमारा मन कुछ और हो जाता है। तो आप अपना माइंड को सेट करके रखिए इस शरीर की तरफ, मिशन की तरफ, कि हमको ये मिशन प्राप्त करना। कैसा लिखना चाहिए इसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि किसी के उसी के 10 मार्क्स मिलते हैं, किसी के 5 ही मिलते हैं। वो क्या कर रहे हैं आप? आपको ज़्यादा मिल गए और आपने वाले मिलते होंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इतना मुझे नॉलेज था कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, IPC। एक क्वेश्चन हमको लिखने के लिए अगर हम 3 घंटे लिखें तो कभी कम पड़ जाएगा, इतना हमें नॉलेज था। IPC के सारे सेक्शन उतना टाइम नहीं होता, वही मतलब तो बता भूमिका बना के उसकी बेस बना के बता। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल याद था तो भूल गया, क्योंकि जुडिशरी में काम नहीं होता। वो तो जो केस आया उसी से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड पढ़ करके बुक्स निकालते हैं, और बुक्स निकाल करके उसके डेफिनेशन, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, और फिर वो उससे रिलेटेड रूल्स सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ वो निकाल लेते हैं। तो उस समय था, तो फिर हम कंसोलिडेट करते थे, अपने को कंट्रोल करते थे कि ये क्वेश्चन इतने पेजेस में लिखना है, ये क्वेश्चन इतने पेजेस में लिखना है। तो हम कंप्लीट कर पाते थे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करते थे। अब उसमें आपको अब अभी हाथ से लिखते हैं, हैंड राइटिंग का ध्यान रखिएगा। हैंड राइटिंग हम लोगों की बिगड़ती जा रही है, बहुत बिगड़ गई। हैंड राइटिंग ऐसी हो कि थोड़ा अपील करे, जैसे ही आपका एग्जामिनर है देख रहा है तो वो हैंड राइटिंग अपील करे, और वो उसका जो है इनर कोड, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनर कोड अंतर वस्तु लिखिए। ऐसे बाहर की बात मत लिखिए, किसी मेला का वर्णन उसमें नहीं करना। उसमें जो कोर इश्यू है उसको लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था कि पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हार्स। पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हार्स। अब अनरूली हार्स क्या हो सकता है? हम चकरा गया कि अनरूली हार्स, हिंदू वाले आदमी घोड़े की लगाम, अनरूली हार्स ये क्या होता है? बहुत देर दिमाग होता रहा। फिर हमने सोचा ये कॉन्स्टिट्यूशन के पब्लिक पॉलिसी मैटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। And actually then I thought, it came to my mind that this was a ruling given by Justice Iyer कि public policy and unruly house। फिर उसी पे हमने केस लागू कर दिया, लिख दिया। तो आपको ये देखना है कि कैसे हम प्रिपेयर करें और क्या अंतर्राष्ट्रीय लिखें। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को लिखें। अच्छी बात है। अब हमें जो है ये कुछ लोग आजकल ना, मतलब पहले LLB करते हैं, फिर 2.5-3 लाख रुपए कोचिंग सेंटर को देते हैं, फिर वहाँ पढ़ के जाते हैं। उससे कैसे बचा जाएगा? वाइल स्टडी LLB आज ही से हम तैयारी करें, और इसी तरह से इसमें बता दीजिए कि हम आज ही से अपना जुडिशरी का फैसला कर लेंगे। मुझे उसमें जाना है, लेकिन कोचिंग में नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास टीचर भी हैं, वो भी हैं, सारे हैं, और वहाँ तो 400-400 बच्चे होते हैं, एक स्पीकर होता है, हॉल में बोलता है, और कोचिंग में। तो आज कैसे की जा सकती है तैयारी? आज से कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर का हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कभी कोचिंग से हम जाना भी नहीं चाहते, आज से हम तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा है कि जो मैंने पहले बताया कि आप वो गाइड्स ले लीजिए 2-3 आखिर की, और अनुसार पेपर ले लीजिए पिछले 10 साल का, उसमें कुछ छाटिए क्वेश्चन पेपर। ये कोचिंग वाले लोग जनरली यही करते होंगे हमारे ख्याल से।
तो उसमें आप क्वेश्चन छाटिए अपने ग्रुप फर्स्ट की ईयर का क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अपने अपने फैकल्टी मेंबर्स की आप हेल्प लीजिए। उनका ड्यूटी लगा देते हैं कि वो पिछले अगर 10 साल नहीं 5 साल के जुडिशरी के पेपर जमा करते हैं ताकि हम लोग अपना उसमें देखें क्या क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन के हम क्लास में कितना है क्या नहीं है। आपने अगर सुना होगा इस वक्त या पहले से आज तक अगर कंट्री में सबसे अच्छा प्रोफेसर ऑफ लॉ रहा है तो उसको कहते हैं प्रोफेसर अपिंदर बख्शी। सुना है नाम आपने? प्रोफेसर अपिंदर बख्शी। अब मैं ये आपको इंस्पायर करने के लिए कहता हूँ। तो हम एक दिन एक ही डायस पे बोल रहे थे तो मैंने उनकी तारीफ की कि प्रोफेसर बख्शी deserves a मीनार, he has done this। लेकिन जल्दी मैंने कहा कि I am not praising you, I am not a sycophant, I praise you because you deserve it। I am not a sycophant, sometimes I feel I am a better scholar than you। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और भी थे। मैंने कहा देखते हैं कोई क्वेश्चन उठाता तो आई एम रेडी टू गिव आंसर। तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको डिफरेंट आज जो है होना है। अब ये लोग जो है कोर्ट में जज से डर के बात करते हैं तो इसलिए ज़्यादा बुलंद नहीं करना है अपनी आवाज़। टीचर तो फेयरलेस होता है ना? टीचर बोल सकता है और बोलना भी चाहे, उसको स्टूडेंट को बनाना है, उसको नेशन को बनाना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये आदत डालिए कि मैंने कुछ कहा तो इसका क्या मीनिंग है। इससे अच्छे वर्ड्स में कहा जा सकता है, इससे और कोई अच्छा इलस्ट्रेशन दिया जा सकता है, इससे और कोई पर्पसफुल कोटेशन दिया जा सकता है। इसमें लगा दिया, यही तो काम है आजकल हमारा। और अब अगर आप में से कोई चाहता, वो चाहता है या ये चाहता है कि लोग मुझे मान लें, तो उसके लिए दिमाग में ये मत सोचो कि लोग मुझे मान लें। उसके लिए आप जब अच्छा अचीवमेंट करोगे तो लोग खुद ही मान जाएंगे। उसमें टाइम ज़ाया मत करो। अगर कोई आपको मानता भी है तो वो तो टेम्पररी टाइमली और हो सकता है अपरेंटली तो मान लिया लेकिन दिल में हेट है, ये कैसा आदमी है। लेकिन अगर आप खुद अच्छे अचीवर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं, नॉलेज वाले हैं, स्किल वाले हैं, तो आपका दिल से अप्रिसिएशन हो जाएगा। तो कौन सा रास्ता अच्छा है ना? तो इसलिए जो है कि आज के दिन आप बदल जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं हमें तो अचीवर बनना है, we have to be the achiever, we have to perform। और अब जो है कि मैंने सुना है ये आर.एन. सिंह जो है ना आपसे एक राज नहीं बोल रहा है। वो ये है कि जब वो स्कूटर पे पकड़ लिया था ना पुलिस वाले ने, इतना हिल गया था कि 6 महीने अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। और 6 महीने पता है क्या कर रहा था? सिर्फ बुक्स पढ़ रहा था। और 6 महीने बाद बताया नाउ आई कैन फेस एनी एग्जाम, एनी बॉडी, एनी इंटरव्यू। ये करना है, हिल जाना है। भाई कोई ताना दे, कुछ कहे तो इसका झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं कहना है, अपनी मेहनत शुरू करनी है कि आज से मैं हर दिन 2 घंटे 3 घंटे अपना लगा दूं इसमें। एंड देन आई मस्ट बी एबल टू फेस एनीवन। He may be a judge, he may be a senior, he may be a colleague, he may be the opposite lawyer.